اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پارٹ بی دیکھیں گے جس میں گرامر سیکھیں گے، اور گرامر میں ہم لوگ آج فاعل، مفعول اور فعل سیکھیں گے، جو کہ سیگا، فعلا، جعلا، فتحا، نصرا، خلقا سے ہوگا۔ تو ایک بار ہم گرامر سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ الفاظ کو عربک میں کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کیا ہیں؟ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں اسم، فعل اور حرف۔ اسم ہوتا ہے کسی کا نام، جیسے کہ کتاب، مکہ، صفت جیسے کہ مسلم، مومن وغیرہ۔ اسم کی پہچان ہم شروع میں الف لام یا پھر آخر میں تنوین یعنی کہ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر سے کریں گے، اور جمع کے صیغوں کو اون، این، آت جیسے مسلمون، مسلمین، مسلمات وغیرہ سے کریں گے۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتحہ، یعملون وغیرہ۔ حرف ہوگا جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے کہ بیلی، منفی، انا وغیرہ۔ الحمدللہ اسم اور حرف سیکھ چکے ہیں ہم۔ اب ہم سیکھ رہے ہیں فعل، جس میں ہم سیکھ رہے ہیں فعل، فعل امر اور فعل امر وہ نہیں سیکھ چکے ہیں۔ اب تک ہم نے کیا سیکھا؟ جس میں فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر سیکھا ہے۔ تو ایک بار ہم اس کی ریپیٹیشن کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ فعل میں ہم نے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر سیکھ لیا ہے۔ تو ہم ایک بار اس کی گردان کو دہرا لیتے ہیں۔ فعل ماضی، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو یہ فعل مضارع ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ اور یہ ہے فعل امر وہ نہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ اور فعل کے 4 اہم نمونے ہیں، جنہیں عربک میں باب بھی کہا جاتا ہے۔ فتحہ باب سے ہوگا، فتحہ اس کا ماضی ہوگا، یفتح مضارع ہوگا، اور افتح اس کا فعل امر ہوگا۔ اور نصرہ فعل ماضی ہوگا، ینصرو فعل مضارع ہوگا، انصر فعل امر ہوگا۔ ضربہ فعل ماضی، یضرب فعل مضارع، اضرب فعل امر۔ سمیع فعل ماضی، یسمع فعل مضارع، اسمع فعل امر۔ آج کے سبق میں ہم فعالا سے فاعل، مفعول، فعل بنانا سیکھیں گے۔ تو فعالا یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، فعالا اس نے کیا۔ تو فعالا کا فاعل کیسے بنے گا؟ یعنی کہ کرنے والا، فاعل۔ اس میں جب الف ایڈ ہوگا تو فاعل بنے گا۔ یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں جو فعالا کے 3 حروف ہیں، اس کے علاوہ کوئی حروف یہاں پر ایڈ ہوتے ہیں تو انہیں ریڈ کر دیا گیا ہے۔ فاعل کرنے والے کو کہیں گے، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل یعنی کہ کرنا یا پھر کام کا نام ہوگا۔ تو ہم لوگ سیکھیں گے یہ کس طرح سے بنے گا۔ فاعل مطلب کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل مطلب کرنا۔ اسی طرح ہم لوگ فعلا کی گردان میں اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ فعلت ہوگا، یہاں پر وعدت ہے، یہ وعدہ کا ہے، یہ یہاں پر غلطی سے مسٹیک پرنٹ ہو گیا ہے، یہاں پر فعلت ہوگا، یعنی کہ اس عورت نے کیا۔ اسی طرح یفعلو کیا ہے؟ یہ مضارع ہوگا، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو۔ یہاں پر کیا ہوگا؟ تفعلو ہوگا۔ ہم عبارت سے پہچانیں گے کہ یہ عورت ہے یا مرد کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور افعل، افعلو کرو،
इफल कर, इफलू करो, ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो। तो ये फाइल क्या है? करने वाला। मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल यानी कि करना, काम के नाम को फेल कहते हैं। इसी तरह अगर कोई पूछे, हम कोई ना कोई काम तो करते ही हैं, अच्छे काम सभी करते हैं। इसी तरह अगर कोई हमसे पूछे, हल अंता फाइलुन, हल मतलब क्या, अंता तू या फिर आप फाइल करने वाले हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? नअम, हाँ, अना मैं, फाइलुन करने वाला हूँ, नअम अना फाइलुन, हाँ मैं करने वाला हूँ। हल अंतुम फाइलुन, हल मतलब क्या, अंतुम आप सब, फाइलून करने वाले हैं। फाइल की जमा फाइलून, जैसे कि मुस्लिम की जमा मुस्लिमून। इसी तरह हल अंतुम फाइलून, अगर हम सबसे पूछे क्या तुम सब करने वाले हो, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हाँ हम सब करने वाले हैं। हाँ का अरबी क्या होगा? नाम, हाँ। नहनु हम सब, फाइलून करने वाले हैं, नाम नहनु फाइलून, हाँ हम सब करने वाले हैं। इसका जवाब इस तरह से होगा। इसी तरह फतह का फाइल क्या होगा? फातिह, खोलने वाला। मफ्तू जिसको खोला गया, फत खोलना। तो इसके सवाल जवाब इस तरह से होंगे। कुरान मजीद तो हर कोई खोलता है और मस्जिद भी खोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फतह से फाती, मफ्तू, फत। तो हल अंता फातिहुन, हल क्या, अंता आप, फातिहुन खोलने वाले हैं। यानी कि अगर कोई हमसे पूछे क्या आप खोलने वाले हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? हाँ मैं खोलने वाला हूँ। नअम, हाँ, अना मैं, फातिहुन खोलने वाला हूँ। इसी तरह हल अल मस्जिदु मफ्तूहुन, हल क्या, अल मस्जिदु मस्जिद, मफ्तूहुन खुला हुआ है। यानी कि फाते करने वाला, मफ्तू जिस पर असर पड़ा गया। तो मफ्तू क्या खोला गया? यहाँ पर मस्जिद को खोला गया। तो क्या, हल क्या, अल मस्जिदु मस्जिद, मफ्तूहुन खुला हुआ है। जो खुल गया वो क्या है? खुला हुआ है। तो इसका जवाब क्या होगा? नअम, हाँ, अल मस्जिदु मस्जिद मफ्तूहुन खुला हुआ है। तो इसका जवाब हम इस तरह से देंगे। इसी तरह जाइल, जाला मतलब उसने बनाया, जाला से होगा जाइल बनाने वाला। मजऊल जिसको बनाया गया, जाल मतलब बनाना। तो इससे रिलेटेड सवाल जवाब इस तरह से होंगे। आपने कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर बनाई होगी, तो इसके ताल्लुक से सवाल जवाब होंगे। हल अंता जाइलुन, हल क्या, अंता आप, जाइलुन बनाने वाले हैं। हल अंता जाइलुन, क्या आप बनाने वाले हैं? इसका जवाब देंगे हाँ मैं बनाने वाला हूँ। तो हाँ की अरबी होगी नअम, अना मैं, जाइलुन बनाने वाला हूँ। इसी तरह हल अंतुम जाइलुन, जाइल की जमा जाइलुन, जैसे कि मुस्लिम की जमा मुस्लिमुन, मोमिन की जमा मोमिनुन। इसी तरह जाइल की जमा जाइलुन। हल अंतुम जाइलुन, हल क्या, अंतुम आप सब, जाइलुन बनाने वाले हैं। अगर हम सब से कोई पूछे क्या आप सब बनाने वाले हैं, तो हम इसका जवाब देंगे हाँ हम सब बनाने वाले हैं। नाम, हाँ, नहनु हम सब, जाइलुन बनाने वाले हैं। नाम नहनु जाइलुन, हाँ हम सब बनाने वाले हैं। इस तरह से इसका जवाब होगा। इसी तरह नसरा की गर्दान पढ़ेंगे हम। नसरा से होगा, इसका फाइल होगा नासिर, मफूल होगा मंसूर, और फेल होगा नस्र। नासिर मतलब मदद करने वाला, मंसूर मतलब जिसकी मदद की गई, नसर मतलब मदद करना। तो इसके सवाल जवाब इस तरह होंगे। नसरा से नासिर, मंसूर और नस्र। हल अंता नासिरुन, हल मतलब क्या, अंता आप, नासिरुन मदद करने वाले हैं। हल अंता नासिरुन, क्या आप मदद करने वाले हैं? इसका जवाब हम देंगे हाँ मैं मदद करने वाला हूँ। हाँ की अरबी होगी नअम, मैं की अरबी होगी अना,
नासिरुन मदद करने वाला हूँ, नाम अना नासिरुन, हाँ मैं मदद करने वाला हूँ। अंता मंसूरुन, और ये है मंसूर यानी कि जिसकी मदद की गई। तो अक्सर क्या है, हम लोग किसी की मदद करते हैं और कोई भी हमारी मदद करता है। जब हम मदद करने वाले होते हैं तो नासिर कहलाते हैं। जब हम मदद लेने वाले यानी कि हमारी कोई मदद करता है तो हम मंसूर बनते हैं। यानी कि हल अंता मंसूरुन, हल क्या, अंता आप, मंसूरुन मदद की गई, क्या आपकी मदद की गई। तो हम क्या जवाब देंगे, हाँ हमारी मदद की गई। तो हाँ के लिए नाम होगा, मैं के लिए अना, मंसूरुन मदद की गई, जिसकी मदद की गई, नाम अना मंसूरुन। हाँ मेरी मदद की गई या फिर मैं मदद किया गया, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। नाम अना, नाम हाँ, अना मैं, मंसूरुन यानी कि मदद की गई, हाँ मेरी मदद की गई। और ये है खलका की गर्दान के फाइल मफूल फेल, यानी कि खलका उसने पैदा किया, इसका फाइल होगा खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया गया, खल्क यानी कि पैदा करना। तो हम लोग देख सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम खालिक कहते हैं, और हमें क्या है, हम लोग क्या कहलाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक। तो इससे हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। खल्क मतलब पैदा करना, खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया गया, खल्क पैदा करना। इस तरह से हम इसके भी सवालात जवाबात बना सकते हैं, लेकिन खालिक खल्क क्या है, पैदा करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम है, तो इसलिए हम इसके सवाल जवाबात नहीं बनाएंगे। आज का नुक्ते तालीम होगा, क्या आप किसी खाने की दावत पर मुर्दा बेजार आवाज में बुलाए गए? कभी नहीं, वरना वो शख्स भूखा रहना पसंद करेगा बजाय आपकी बेजार दावत कबूल करने के। तो इसलिए हमें क्या है, हमारे जहन को जब भी हम किसी चीज को सीखने के लिए तैयार करते हैं तो जो जोश व शौक से एनकरेज करना चाहिए। अगर हम बहुत ही धीमी रफ्तार से सीखने की कोशिश करेंगे तो हमें सीखने में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने जहन को किस तरह दावत देंगे ग्रामर की प्रैक्टिस और मानी याद करने के लिए? थके हुए जहन और मुर्दा दिली के साथ तो नहीं देंगे, बल्कि मोहब्बत और शौक के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि इसने आपको कुरान सीखने ये मौका दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन मुकम्मल हुआ है, और आज हम क्या है 18 लेसन्स के खत्म पर 222 अल्फाज सीख चुके हैं, जो कुरान मजीद में 40,469 टाइम्स क्या है रिपीट हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 78,000 वर्ड्स में हम लोग 40,000 वर्ड्स क्रैक करने के काबिल हो गए हैं।